Good afternoon, students. Yesterday I have started sum of final account. In that we have done sum number 9. Eighth one I have given in homework. Sum number 9, that is also an easy sum. Right, so I will give explanation of that sum number 10. Now today we will solve sum number 11. Now first of all we read the sum. That from the trial balance and adjustment of partnership firm of Salim and Sabana prepare final accounts of partnership firm. सम नंबर 9th जो हमने किया था राइट, वो लास्ट ईयर बोर्ड में आया था राइट. सो नाउ सम नंबर 11 Salim and Shabana. Now here in this sum capital account is given and current account is given. See, first of all we see the trial balance. So when current account is given capital becomes fixed. मीन्स इसमें हम फिक्स मीन्स इसमें ना कुछ ऐड करेंगे ना कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे, सीधा इसको लिख के टोटल लगा देंगे. दैट्स इट. वॉट एवर एडिशन सब्सट्रैक्शन वी हैव टू डू दैट वी डू इन करंट अकाउंट राइट. ओके, सो नाउ let's see one by one these trial balances. Stock of goods 31st 317 means closing stock की एक ही इफेक्ट जाएगी, दैट इज एसेट साइड. कैश बैलेंस एसेट साइड. करंट अकाउंट विथ बैंक ये एसेट साइड. ये करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, करंट अकाउंट विथ बैंक है, सो दैट इज अवर एसेट, सो ऑन एसेट साइड. Then fixed deposit of SBI, that is this is also asset. Debtor, creditor, asset and liability. Salary P&L debit. Land and building asset side. Plant and machinery asset side. Furniture asset side. Insurance premium P&L debit. Leasehold machinery asset side. Stationery and printing P&L debit. Bad debts and bad debt reserve, that is in the table राइट. ये हम 11th में जिस तरह से हम पढ़ते थे वही सेम मैं प्रोसेस फॉलो करा रही हूँ. दैट बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व बोथ हैव दैट इफ बोथ हैव गिवन देन इन द टेबल कम्स इन द P&L डेबिट साइड. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कम्स ऑन P&L डेबिट साइड. देन traveling expense is given, traveling expense P&L debit. Trading account, here trading account is given. Trading account, that means gross profit is directly given, so we need not to prepare trading account. Then loan of Shabana is a partner का लोन है, तो first of all liability side. And then discount reserve, this is P&L credit side right. discount reserve है. Now the adjustments. In that first adjustment, Salim withdraw goods of rupees 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. Now Salim is a partner. He is withdrawing goods of rupees 4,000, but it is not recorded. So we pass two effects for that. First one, that is I have given. Okay, now करंट अकाउंट में जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस में ही जाएगा, एंड क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस में ही जाएगा. सो ऑन 1/4/16 2
बैलेंस ब्रॉट डाउन। 10,000 सलीम का डेबिट है, तो सलीम का डेबिट शबाना में डैश। एंड ये 1,416 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन द टेक्स्ट बुक में थोड़ा रिवर्स दिया है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा करेक्शन करें। इफ़ वी टेक दिस balances we can get our answer, but if we want the answer which is given back to the exercise, we change these balances. That सलीम का होगा क्रेडिट बैलेंस, दैट इज़ 40,000, शबाना में डैश, और यहाँ पे सलीम में डैश और शबाना में 10,000। अब टेक्स्ट बुक में भी चेंज कर देना, दैट सलीम का क्रेडिट बैलेंस 40,000, शबाना का डेबिट बैलेंस 10,000, राइट। नाउ नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ गुड्स, दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स ऑलवेज राइट डाउन एट द लास्ट। तो ये स्टॉक ऑफ गुड्स, आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। स्टॉक ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू ₹54,600। तो वैसे ही जैसे मैंने दिखा है, जैसे ट्रायल बैलेंस ट्रांसफ़र इनटू द फाइनल अकाउंट, आई राइट डाउन दिस इनटू द फाइनल अकाउंट। देन करंट अकाउंट विथ बैंक एसेट साइड, CA लिख देती हूँ सीधा, करंट अकाउंट विथ बैंक। करंट अकाउंट विथ बैंक दैट इज 14,000। देन कैश दिया है, कैश बैलेंस, कैश 560। देन फिक्स डिपॉजिट विथ SBI, FD विथ SBI, तो फिक्स डिपॉजिट विथ SBI, ये भी एसेट साइड, दैट इज 80,000। नो टिक मार्क ऑन दिस, सो डायरेक्टली आउटर साइड। नाउ डेटर्स अमाउंटेड टू ₹36,800, two tick mark on this, so leave one line and draw the line, and again leave two lines and draw the line. Then creditors are given, so creditors on liability side, CRS, that means creditors, जो हम 11th में जैसा लिखते थे वैसा ही सेम ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। Then सैलरी goes into the P&L डेबिट साइड, इसका ये लिख दे particulars amount, to salary outer side 37,000। देन लैंड एंड बिल्डिंग, ये वाला सम बोर्ड में आया था लास्ट टाइम। जब हम चेकिंग में जाते थे तो बहुत सारे जनों का रॉन्ग हुआ था ये वाला सम, और बहुत कम 100 स्टूडेंट में से 40 स्टूडेंट्स का करेक्ट पड़ता था। उसमें भी 2-4 मिस्टेक तो होती ही थी, नॉट एग्जैक्टली प्रॉपरली करेक्ट तो 10 में से 1 या 2 की प्रॉपरली करेक्ट आते थे। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 इनर साइड, 1 टिक लैंड एंड बिल्डिंग here stationery and printing P&L debit side, stationery and printing amounted to ₹1,200 सीधा outer side।
Why? Because no adjustment is given. Bad debts and bad debts reserve. So table बना दे. तो 2 bad debts of trial balance plus bad debts of adjustment plus BDR of adjustment. Then draw the line, then leave one line and write down BDR of trial balance. Now draw the line. Now according to the table, bad debts of trial balance, that is 400 is given. BDR of trial balance 2000 is given. Now advertisement expense दिया था वो भी यहाँ पे advertisement expense amounted to rupees 1200 outer side. Traveling expense again here 800 outer side. Trading account is given, that means here, now see here trading account is given, so we have to prepare revised trading account. So this is our revised trading account, right? particulars amount. यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है स्पेसिफिकली, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट दिया है. सो ट्रेडिंग अकाउंट वी कंसिडर दिस एज टोटल. तो ये टोटल हम ये साइड का ज़्यादा हुआ होगा इसलिए ये ही लिख देते हैं 61800 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट. ओके. देन लोन फ्रॉम शबाना दैट इज़ अ पार्टनर. तो पार्टनर की लोन जाएगी ये एसेट साइड. तो लोन फ्रॉम शबाना, लोन का अमाउंट कितना है 60,000, राइट. आउटर साइड हिडन एडजस्टमेंट इज देयर, सो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट आफ्टरवर्ड्स. देन डिस्काउंट रिजर्व दिया है, डिस्काउंट रिजर्व ये जाएगा पीएनएल क्रेडिट साइड. ऊपर से एक लाइन छोड़ के अमाउंट दिया है 760. So now we have transferred trial balance into the final account. Now we solve all the adjustments. First of all, Salim withdraw. Salim withdraw goods of rupees 4000 for personal use. It is not recorded in the books. So first effect जाएगी trading account credit side, right? Salim withdraw goods of rupees 4000 for personal use. So this first effect goes to the trading account debit side. Goods gone by anyways that we subtract from the purchase. If you remember, goods gone by anyways that we subtract from purchase. तो यहाँ पे परचेज के लिए एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे लिखे सलीम्स ड्राइंग. सिंपल लिख देते हैं सलीम्स ड्राइंग. Second effect of this goes into the additional drawing. Additional drawing. Here drawing is not given. So in the current account on 31st 3/17 two drawing Salim के कॉलम में 4000 here dash. Right, so first adjustment is over. Now second, goods of rupees 8000 purchased at the end of the accounting year. Purchase है तो परचेज जाएगा ट्रेडिंग डेबिट 8000.
उसमें से गुड्स गॉन बाय एनी वेज लेस होगा, तो आउटर साइड जाएगा 4000। समझ में आई है? ओके। तो उस परचेज से क्या इफेक्ट करेंगे? परचेज से क्रेडिटर्स अफेक्ट करेंगे। क्रेडिटर्स में तो हमने अंदर तो लाइन छोड़ी नहीं, तो इसको अंदर लिख दे 24,000 प्लस ऑन रिकॉर्डेड परचेज अमाउंट 8,000, तो ये आउटर साइड जाएगा 32,000। ये 32,000, right? So two effects are over: one P&L, one trading debit, second balance sheet asset side. Now the next, third adjustment, prepaid insurance is 400. prepaid insurance है तो लेस करे, इंश्योरेंस प्रीमियम में से लेस करे प्रीपेड, $400, so outer side 1,600. Second effect, asset side, यहाँ लिखे जगह है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 400. Now next, provide 800 from debtors. 800 is not recoverable and 5% BDR on debtors. देखो 800 नॉट रिकवरेबल, तो ये बैड डेट्स, तो बैलेंस कम्स 36,000. 36,000 5% दैट इज BDR, तो दैट BDR आएगा 1,800. सो आउटर साइड अमाउंट गोज टू 34200. सेकंड इफेक्ट इन दोनों की, इन द टेबल बैड डेट्स ऑफ एडजस्टमेंट है 800 एंड ये आएगा 1,800. इसका हम टोटलिंग कर दे, 1,800 प्लस 800 प्लस 400 कम्स 3,000. इन दोनों को लेस करे तो आउटर साइड 1,000. सो बैड डेट्स इज ओवर. फिफ्थ एडजस्टमेंट है डिस्काउंट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, सो नो नीड फॉर कैलकुलेशन. देन लास्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी पे 20% डेप्री एंड फर्नीचर पे 5% डेप्री. So 40,000's 20% comes 8,000. So outer side comes 32,000. Then on furniture 10,000's 5% comes 500. So outer side comes 9,500. Now effect of both of these goes into the P&L debit side. Now we write down two depreciation. आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप साथ में भी लिख सकते हैं. फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फॉर फर्नीचर. प्लांट एंड मशीनरी का था 8,000, फर्नीचर का था 500. सो आउटर साइड कम्स 8,500. राइट. नाउ adjustments are over. Now we solve hidden adjustment. First hidden adjustment is leasehold machinery from leasehold machinery from 1/4/16 for 5 years. Okay, for 5 years दिया है, मीन्स 5 years का रिटर्न ऑफ, तो ये रिटर्न ऑफ फॉर 5 years. तो किस तरह से करेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा -12,000. सो आउटर साइड कम्स 48,000. राइट. समझ में आई है?
राइट। सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L डेबिट टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड building, that is 12,000. P&L debit side, right? Okay. Now the last hidden adjustment, that is loan from Shabana. ये जो शबाना का लोन है इसके साथ डेट दिया था 1/10/16, तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 60,000. नाउ दिस इज पार्टनर्स लोन. So on partners loan always give if percentage is not specified at that time provide 6% interest on loan, right? Here percentage is not given, सीधा लोन दे दिया तो 60,000 6% और how many month 1/10/16 to 31st 3/16, तो for 6 month. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? एक मिनट यहाँ पे देखते हैं. लोन शबाना का लोन देखो 60,000 6% फॉर 6 month. 1/10 दिया है ना डेट 1/10/16 टू एंडिंग डेट 31st 3/17, तो कितने 10 11 12 1 2 3 आ गया 6 month का. ओके. सो लोन फ्रॉम शबाना, तो शबाना का लोन का इंटरेस्ट आएगा ये 1800, राइट? ओके. So let's give effect of this. First of all, interest right on our liability side. Interest on loan, that is 1800. ये आप सेपरेट भी लिख सकते हैं या लोन में ऐड करके 61,800 बाहर भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. पुराने सिलेबस में इस तरह से आता था, नए सिलेबस में इस तरह से अलग अलग आता है, बस डिफरेंस और कुछ नहीं है, बाकी सेम. नाउ सेकंड इफेक्ट लोन ऑफ शबाना, उसका मैं ये नीचे ये ऊपर लिख देती हूँ, ऊपर जगह है टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना 1800 P&L debit side, right? Okay, now everything is over. So now let's do totaling. First of all we do totaling of trading account. totaling करें इसका तो ये जाएगा 61,800 61,800, तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा 57800. दिस इज टू ग्रॉस प्रॉफिट. समझ में, ये ग्रॉस प्रॉफिट है 57800. नाउ दिस वी ट्रांसफर टू P&L क्रेडिट साइड. ये आ गए P&L में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 57,800. ओके. नाउ इसका टोटलिंग करें. इसमें डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है. इसमें ये साइड वाला टोटल ज़्यादा आ रहा है बिकॉज ये देखो ये 37,000 है, ये 12,000 है. उससे ही पता चल जाएगा कि ये साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है. तो ये साइड का टोटल आ रहा है 65,100. यहाँ भी 65,100. तो ये साइड डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स नेट लॉस. दिस इज कॉल्ड एज बाय नेट लॉस अमाउंटेड टू ₹6540. इतना ये लॉस जा रहा है. नाउ दिस लॉस वी ट्रांसफर इनटू द अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड. सो राइट डाउन बाय नेट लॉस
6540. नाउ हियर आगे तो और कुछ है नहीं अप्रोप्रिएशन में, तो टोटल